Yes, please. Yesterday we were describing the how the stability of the system affects. Means who is what factors are responsible for maintaining the system stability. We described here in case of a generator, this is a rotor, and around this there is a stator where the rotating flux is there. And whenever disturbance may be in the form of change in additional energy here, if you give the additional means for here in this case force multiplied by distance, here in this case torque multiplied by angle, it is the energy given to this additional energy. If additional energy given or an additional energy taken from here other than the balance one, then this energy causes the disturbance in the system, and this is balanced by the either is the loss of energy due to friction or because of the stored energy in this rotor. So, or you can say stored energy is given by half I omega square. Omega is the speed, so mainly you can say it depends upon the I means moment of inertia, means disturbing force caused because of Tm minus T, change in mechanical and electrical torque, is counterbalanced by the moment of inertia I and the friction force. So in this way, it means if we want to maintain the system stability high, if you want more means during the disturbance, for the same amount of disturbance, if system supposed to be is required to be more stable, then inertia should be high. But at the same time, we told there are some drawback of maintaining the high inertia, because it takes, if the inertia will be high, its time constant will be large and it will take large time to retain the normal speed. So we have to and because of the inertia is high, it is the cost effective, time constant is high. So as the technology improves, the inertia is going down, but it becomes the challenge to maintain the stability of the system. So for maintaining the stability of the system, we have to take other technique to maintaining the stability, to enhance the stability of the system. So before describing, and we also told there are some methods of analyzing the stability. One was the dynamic analysis, another was the transient analysis, and the steady state analysis. So these are the method of analyzing the stability problem. And in case of and there are some designated names of maintaining that. But before describing that, I would like to explain. I would like to have one numerical question that will describe you how the energy or disturbing force is affecting the stability, and finally it affects the frequency. So let us have one numerical question here. A 200 MVA synchronous generator, I am saying a 200 MVA synchronous generator is operating at 3000 RPM 50 Hz. मतलब इतना इसकी कैपेसिटी है जनरेटर की, इसकी रेटिंग है और 3000 RPM रन कर रहा है. इट मीन्स इट इज ए 4 पोल मशीन एंड 50 हर्ट्ज के लिए हमने सेटिंग की हुई है. 50 हर्ट्ज के लिए मीन्स इनपुट सेटिंग ऑफ द फ्यूल इज डन सच दैट at given load it is providing 50 hertz frequency. Means at given load the input is equal to the output, and at that time frequency is 50 hertz and it is running at 3000 rpm. Now what is happening, a load of 40 megawatt is suddenly applied to machine. 40 megawatt का load additional suddenly लगा दिया, and the station valve to the turbine opens only after 0.4 सेकंड. जैसे ही हमने लोड लगाते हैं, देखिए आपने लोड फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था, जैसे ही आप लोड लगाएंगे तो क्या होगा, लोड लगाएंगे तो ये स्पीड सेंस करेगा, स्पीड गवर्नर उसके थ्रू, स्पीड गवर्नर के थ्रू, और वो सेंसिंग ऑफ स्पीड वो हमारा किस पे जाता है, हाइड्रोलिक एम्पलीफायर के थ्रू होते हुए फ्यूल एंट्री. फ्यूल अपना लोड बढ़ा दिया तो फ्यूल का इनपुट बढ़ेगा, सो दैट अगेन इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट. नाउ इसमें ये कह रहे हैं बाय द टाइम इट टेक्स
देखिए द स्टेशन वाल्व टू द टरबाइन ओपन्स ओनली आफ्टर 0.4 सेकंड। जैसे हमारा लोड बढ़ा तो इमीडिएटली, कोई भी सिस्टम हमारा आइडियल नहीं है कि जैसे ही लोड बढ़ा इमीडिएटली स्पीड गवर्नर भी कुछ टाइम लेगा, फिर हाइड्रोलिक एम्पलीफायर भी कुछ टाइम लेगा, फिर एम्पलीफायर के बाद वो किस पे जाएगा, टरबाइन की फ्यूल एंट्री पे जाएगा, तो वाल्व ओपन होगा। वो कैसा वाल्व है, मैकेनिकल वाल्व है या हाइड्रोलिक वाल्व है, किस टाइप का वाल्व है, और उसके बेसिस पे फिर वहां भी टाइम लगेगा। हर एक का अपना एक टाइम कांस्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें टाइम लगेगा। तो उस समय तक तो द क्वेश्चन इज द टरबाइन ओपन्स ओनली आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड का टाइम इसे लगा ड्यू टू द टाइम लैग इन द जनरेशन एक्शन। तो ये जनरेटर एक्शन है उसमें इतना टाइम लग गया। और एक्चुअली में क्या है, जो टाइम कांस्टेंट जो कहते हैं वो एग्जैक्टली ये नहीं है कि वाल्व ओपन हो रहा है, वाल्व ओपन हो रहा है, सपोज वाल्व 0.2 सेकंड पे स्टार्ट हुआ, 0.4 पे पूरा खुल गया, तो 0.2 सेकंड से लेकर 0.4 सेकंड के बीच में वाल्व की डिफरेंट पोजीशंस होंगी। मींस वाल्व ओपन हो रहा है, सपोज पोजीशन एक्स से लेके और फाइनली वाई पे गया, तो एक्स, x+1, x+2 एंड फाइनली रीच टू वाई, तो इसकी ओपनिंग होगी। तो एक्चुअल उस समय कितना फ्यूल जा रहा है, एक्स जब ओपन है सपोज 50% ओपन है, फिर 55% हुआ, फिर 60 हुआ, 62% हुआ, 67% हुआ, ऐसे धीमे धीमे। तो 100% जब तक होगा तो 0.2 सेकंड सपोज हो गया, तो पूरा ओपन हो गया 0.2 सेकंड में। तो उस समय कितना फ्यूल एंटर किया वो कैसे निकालेंगे, वो इंटीग्रेट करके निकालते हैं। जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्पीड करके हमने उसका कितना फ्यूल एंटर किया निकालते हैं। लेकिन यहाँ ये एज्यूम किया, देखिए एज्यूम क्या किया है, वाल्व ओपन्स टू द टरबाइन्स ओनली आफ्टर द 0.4 सेकंड। ये कहा है जीरो से लेकर 4 सेकंड तक वाल्व जितना था उतना ही था, और 0.4 सेकंड के बाद इमीडिएटली खुल गया। ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू, बट इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एज्यूम, क्यों एज्यूम किया, हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ना करना पड़े, डायरेक्टली हमने 0.4 सेकंड के बाद ओपन मान लिया। अभी कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी टू विच द जनरेटर, ये थोड़ा गलत लिखा है, वोल्टेज ड्रॉप, टू विच द जनरेटर विल ऑपरेट बिफोर द स्टीम वाल्व कमेंसेस टू इंक्रीज टू मीट द न्यू लोड। मतलब पहले जो फ्रीक्वेंसी थी उसके कंपैरिजन में अब जो नई फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी। गिवन दैट द इनर्शिया वाल्व ऑफ एच जनरेटर इज गिवन, इनर्शिया कांस्टेंट एच इज 5.5 किलोवाट सेकंड पर केवीए, ये इसका इनर्शिया कांस्टेंट है। इनर्शिया कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज द इनर्शिया कांस्टेंट, हु विल टेल, इनर्शिया कांस्टेंट क्या होता है, जगबीर, कार्तिकेय, यस मिस्टर कार्तिकेय, दीपिका, दीक्षा, सर जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट रेटिंग, एक रेटिंग पे जितनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी वो इनर्शिया कांस्टेंट होगी। अगर इसकी रेटिंग 200 MVA है तो देखिए पर केवीए इतनी एनर्जी स्टोर होगी उसमें, जब हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर रन कर रहा है 50 हर्ट्ज पे, तो स्टार्टिंग में इसका स्पीड 0 था, 0 से लेके उस स्पीड तक पहुंचने में, फुल स्पीड तक पहुंचने में स्टार्टिंग में एनर्जी स्टोर कर लेगा, फिर इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट करेगा। तो कितनी एनर्जी स्टोर कर लेगा, 5.5 पर केवीए। तो 200 MVA का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी एनर्जी, किलोवाट सेकंड इज द एनर्जी, और मेगा जूल उतना ये किलो जूल ये एनर्जी स्टोर कर लेगा। तो इसका एनर्जी स्टोर निकालना हो तो 5.5 में 200 MVA का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकलेगा एनर्जी स्टोर्ड इन द जनरेटर। ओके, अब इतनी एनर्जी स्टोर थी, इसमें एनर्जी स्टोर थी, इमीडिएटली 40 मेगावाट का एक्स्ट्रा लोड लगा दिया। तो ऐसा हमने क्या बताया था, जो एडिशनल डिस्टर्बिंग लोड है, डिस्टर्बिंग है, वो कहाँ से आएगा, दो जगह से आता है। एक तो फ्रैक्शन से उसका कंजम्पशन होता है, और दूसरा जो बैटरी स्टोरेज, जो ये स्टोरेज एनर्जी है वहां से आता है। तो इसमें फ्रैक्शन 0 माना हुआ है, तो सारा का सारा जो 40 मेगावाट है, और कितने 40, देखिए 0.4 सेकंड के बाद इनपुट होगा, 0.4 सेकंड के बाद एडिशनल फ्यूल जाना शुरू होगा। उससे पहले 0.4 सेकंड तक ये 40 मेगावाट क्या है, मेगावाट मतलब मेगा जूल पर सेकंड, एक सेकंड में इतना मेगावाट, इतना एनर्जी जा रहा है। तो इतना एनर्जी जाता रहे, इतना एनर्जी एक्स्ट्रा, ये है ना, ये एडिशनल लोड है, ये सडनली अप्लाइड।
तो ये 40 मेगावाट 0.4 सेकंड तक कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। उसके बाद ही इसका जो है वाल्व एक्स्ट्रा फ्यूल ओपन होगा, और फिर जब एक्स्ट्रा ओपन हो जाएगा तो ये इनपुट बढ़ा देगा तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो जाएगा। लेकिन ये चीजें इमीडिएटली नहीं होती हैं कि इसने इमीडिएटली इनपुट बढ़ा दिया, बट और उसका इफेक्ट, इनपुट बढ़ने के बाद उसका इफेक्ट जनरेटर पर जाने में टाइम लगेगा। बट एनीवे 0.4 सेकंड में जो ये एनर्जी ले लेगा, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। ये जो स्टोर्ड एनर्जी थी उससे ले लेगा। तो जब इससे एनर्जी ले लेगा तो क्या होगा? इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि अब इसकी स्पीड कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा। और आपको ये बताया था काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मींस फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है? h into s। तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर मींस, तो अब देखिए यहाँ क्या किया इसमें, हाउ इट इज सॉल्व। देखिए रेटिंग ऑफ द जनरेटर 200 मेगावाट, लोड अप्लाई 40 मेगावाट, और ये एच निकालने के लिए इसमें 200 का मल्टीप्लाई कर दिया है। इफ यू मल्टीप्लाई 200, ये एच है, इसमें 200 का मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मेगावाट ऐसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ m10³ हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया कितना, इसमें मल्टीप्लाइड किया ना, तो ये 3 और 3 मिला के ये हमारा आ जाएगा इतने मेगावाट सेकंड। तो ये इतना एडिशनल लोड एनर्जी इस पे पड़ गया। तो सॉरी, ये स्टार्टिंग में एनर्जी स्टोर थी, स्टार्टिंग में h मल्टीप्लाइड बाई दिस 200, और यहाँ करेंगे किलोवाट, और फिर इसको दोबारा से हमने 3 और 3 लेकर कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी स्टार्टिंग में एनर्जी थी, एनर्जी स्टोर। अब बिफोर द स्टीम वाल्व ओपन्स, क्योंकि 0.4 सेकंड के बाद वाल्व ओपन हुआ है, तो इसमें 0.4 सेकंड में इतनी मेगाजूल एक्स्ट्रा ले लेगा। 40 मेगावाट लोड लगाया था, 0.4 सेकंड लग गए आपका फ्यूल ओपन होने में, फ्यूल का इनलेट ओपन होने में। तो 16 मेगावाट, ये 16 मेगावाट का उसमें से एनर्जी ले लेगा, इसमें से स्टोर्ड में से ले लेगा। तो जब ये एनर्जी इतनी थी तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, मतलब उसमें स्टोर एनर्जी इतनी थी, मींस एनर्जी स्टोर इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये एनर्जी मतलब दिस 1100 इज प्रोपोर्शनल टू 50 स्क्वायर, 50 हर्ट्ज थी। अब एनर्जी कितनी रह गई? 1100 माइनस 16 रह गई। तो अब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी? f माइनस डेल एफ जितनी थी, मान लो डेल एफ कम हो गया, f माइनस डेल एफ का स्क्वायर। तो यही यहाँ किया हुआ, देखिए अगर ले लिया तो ये देखिए, ये f0, ये ओमेगा बाई ओमेगा, इट इज ओमेगा नहीं, इट इज ए w मीन्स काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ आई ओमेगा। सो एनीवे काइनेटिक एनर्जी हियर इज प्रोपोर्शनल टू f स्क्वायर, और ये वाली f प्लस है, डेल f प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो अब ये w बाई डब्ल्यू जीरो, और ये f डेल्टा f का स्क्वायर, और f0 स्क्वायर, इसका तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये क्या है? ओमेगा आप कितना, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1100 माइनस 16, तो 1100 माइनस 16, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? सॉरी, ये ओमेगा 0 1100, ठीक है। ये क्या हो गया? और ये f डेल f f0, ये 50 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसका अंडर रूट हो गया, ये 50 का मल्टीप्लाई हो गया। तो f न्यू क्या हो गया? जो नया ये f न्यू है, टोटल f न्यू कह लो इसे, और ये टोटल आ गया। तो डेल एफ निकालेंगे तो 50 माइनस तो डेल एफ आ जाएगा। तो इसका अंडर रूट किया, ये किया, तो आएगा 49। मतलब अब जो नई फ्रीक्वेंसी है, इसे पूरा अलग डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो अच्छा लिखेंगे, अदरवाइज इसको पूरा का पूरा एफ न्यू, नई फ्रीक्वेंसी, ओल्ड फ्रीक्वेंसी ओल्ड एनर्जी, न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंगली ये आ गया 49 हर्ट्ज। तो अब जो फ्रीक्वेंसी है 49 हर्ट्ज हो गई। तो 49 हर्ट्ज तब तक हो चुका होगा फ्रीक्वेंसी, 50 की जगह 49.635। उस समय ये वाल्व ओपन हो गया, तो इनपुट इजिकल टू, फिर उस समय इनपुट इजिकल टू आउटपुट बना रहेगा। और ये अगर ये हमने इनपुट इजिकल टू आउटपुट नहीं कर, वाल्व ओपन नहीं होता तो ये कम होता चला जाता। क्यों कम होता चला जाता? क्योंकि टाइम बढ़ता रहता, 0.4 0.5 0.6 ये बढ़ता जाता 16। तो ये अगर वाल्व ओपन नहीं हो तो देखिए ये कितने 1.16 मेगा जूल, इसको इसमें देखेंगे 16 मेगा जूल, तो कितना
110 डिवाइड बाई 16, 7 इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 70 सेकंड आ जाएगा इस 11। तो 70 सेकंड का मतलब 1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड के बाद ये पूरी की पूरी इसकी पूरी की पूरी एनर्जी जो स्टोर एनर्जी थी वो ले लेगा। मतलब 1 सेकंड में ही इसकी फ्रीक्वेंसी, ये सिस्टम हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, 0 फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाएगा। हालांकि वी आर नॉट अलाउइंग, 48 से नीचे तो अलाउ ही नहीं करते हैं, क्योंकि स्पीड गवर्नर अपना काम करना शुरू कर देता है। अगर स्पीड गवर्नर ने अपना काम करना शुरू नहीं किया होता, मतलब स्पीड गवर्नर सेंस करके और वाल्व ओपन नहीं करे, तो केवल 1 मिनट के अंदर ही ये पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी हमारा 0 पे पहुंच जाएगा। पूरी पूरी एनर्जी हमारा यहाँ से जो स्टोर एनर्जी थी वो सप्लाई में चला जाएगा, एडिशनल लोड में चला जाएगा, अगर हमने फ्यूल को एक्स्ट्रा ओपन नहीं किया तो। और सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इट विल लूज द सिंक्रोनिज्म। जब इसके साथ जब इसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, रोटेटिंग फ्लक्स और रोटर की फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं कर रही है, तो इट विल लूज द सिंक्रोनिज्म। सिंक्रोनिज्म मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? इसमें कुछ पूछना है? दीक्षा, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन दिस? नो सर। ओके, now we were describing yesterday about this equation was described by us. This is called the swing equation. If we want to have the exact solution, उसमें क्या किया था हमने, एज्यूम किया था 0.4 सेकंड तक ओपन नहीं हुआ, वाल्व ओपन नहीं हुआ, एक्स्ट्रा ओपनिंग नहीं हुई। और जबकि ऐसा नहीं है, 0.4 सेकंड वो 0.1 से स्टार्ट होकर 0.4 के बीच में धीमे धीमे ओपन होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन हमें अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखना है तो इस तरह सॉल्व करते हैं। PM माइनस PE, उसमें तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, जो 40 का हमने 0.4 सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया था, सिंपल। बट हियर एक्चुअली PM माइनस PE दोनों पावर में जो डिफरेंस होगा, मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर में जो डिफरेंस होगा, ये इस इक्वेशन सॉल्व होगा H/πf और इट इज कॉल्ड M d² डेल्टा बाई dt²। तो यहाँ से हम डेल्टा, मतलब डेल्टा कितना होगा, जैसे वहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से पहले डेल्टा चेंज होगा, तो डेल्टा कितना चेंज होगा, डी बाई डेल्टा से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना हो डेल्टा और चेंज इन पावर में, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द स्विंग इक्वेशन। नाउ विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग दिस इक्वेशन, वी हैव सम मेथड which is called the equal area criteria, from where we can find the stability too. इससे भी पता लगा सकते हैं स्टेबिलिटी क्या है। Although later on we will solve this equation also. So this equation is saying this M per unit. Again and again we write PU. This equation is written simply here, where we assume M is M per unit, PM is PM per unit, PE is per unit. यही वाली इक्वेशन है, इसको हमने यहाँ लिख दिया है। बार बार पर यूनिट लिखने की बजाय ये एज्यूम किया है एवरीथिंग इज इन पर यूनिट। या तो और PE देखिए, PM मैकेनिकल पावर, इसको अगर आप यहां से देखेंगे, ये PM है और ये यहां से डेल्टा 0 पे ये PE है। तो PM माइनस PE, PE क्या है, EB/X साइन डेल्टा। तो देखिए इस इक्वेशन को अगर P इज द P मैक्स साइन डेल्टा और EB/X साइन डेल्टा, और ये वैल्यू चेंज, क्योंकि जैसे जैसे अगर आपने PM बढ़ा दिया तो क्या होगा, मैकेनिकल पावर बढ़ा दी, इलेक्ट्रिकल अगर स्टार्टिंग में मैकेनिकल पावर बढ़ा दी तो क्या होगा, PM बढ़ा दी तो PM माइनस PE अगर उतनी है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें एक्सीलरेशन होगा तो मीन्स रोटर में एक्सीलरेशन होगा तो क्या होगा, डेल्टा बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ेगा तो ये एक टाइम के बाद में दोनों बराबर हो जाएंगे, तो न्यू डेल्टा पे ये सेट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये क्या है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें d² डेल्टा t² है,
और इसको अगर सॉल्व करेंगे, लेटर ऑन आल्सो यू विल सी दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको करेंगे सॉल्व तो एक इसका जो नेचुरल सॉल्यूशन है दैट विल बी लाइक दिस, इस टाइप से सॉल्यूशन आएगा, ये साइनोसॉइडल, कंप्लीटली साइनोसॉइडल ये आएगा ऐसा। दो तरह के सॉल्यूशन ये, अगर डैम्पिंग कुछ नहीं है तो परमानेंट ऑसिलेट करता रहेगा, डेल्टा और रोटर विल ऑसिलेट रेगुलरली कंटिन्यूअसली इफ देयर इज नो डैम्पिंग, डैम्पिंग नहीं है तो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ही हमेशा ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा, रोटर विल ऑसिलेट लाइक दिस कंटिन्यूअसली, and if you plot delta and time it will be like this sinusoidal, but it is not possible that delta the damping is not there, damping is always there in the form of the fraction की वजह से डैम्पिंग हमेशा होता है, तो डैम्पिंग की वजह से ये एक बार ऑसिलेट करेगा, फिर ये मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होता जाएगा, फाइनली ये स्टेबलाइज हो जाएगा। और देयर में भी चांसेस कि हमारा अगर डिस्टर्बेंस है ये PM माइनस पी, अगर ये लार्ज एनफ है, अगर ये डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है तो ये ऑसिलेट भी ना करने दे और साइंस डायरेक्टली अनस्टेबल हो जाए। अगर डिस्टर्बेंस ज़्यादा है मींस जो हमारा कर्व था ई बाई डेल्टा अनस्टेबल रीजन में पहुंच गया, तो इससे डेल्टा इतना तेजी से बढ़ेगा कि ऑसिलेट भी नहीं करेगा और इट विल बी अनस्टेबल, मीन डेल्टा 30 डिग्री से और सपोज इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का मतलब इट विल लूज द सिंक्रोनिज्म, रोटर रोटेटिंग फ्लक्स एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली कपल्ड नहीं रह पाएंगे। तो सॉल्यूशन, एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन इज लाइक दिस, ओके। इसमें देखिए ये सॉल्यूशन क्या बता रहा है, दिस इज हियर इट इज ए स्लोप, दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ दिस कर्व। तो यहाँ स्लोप ये, व्हाट इज दिस स्लोप, स्लोप इज ग्रेटर देन 0, डी डेल्टा बाई डी टी इज द स्लोप, डेल्टा वर्सेस टाइम है तो डी डेल्टा बाई डी टी इज द स्लोप, सो दिस इन दिस रीजन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या है, स्लोप ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया तो स्लोप 0 हो गया, इधर स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया तो स्लोप माइनस हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर स्लोप, जैसे हमारा डेल्टा की वैल्यू ये बढ़ती जाएगी, डेल्टा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब डिस्टर्बेंस आया तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन केस ये स्लोप ग्रेटर देन 0 के बाद स्लोप अगर 0 हो गया, ये ग्रेटर देन 0 स्लोप 0 हो गया और उसके बाद ये कम होने लगा, अगर स्लोप 0 ओके ये ऐसा बढ़ता जा रहा है स्लोप यहाँ, और यहाँ सॉरी स्लोप ये है, यहाँ स्लोप 0 होता फिर स्लोप बढ़ेगा। तो अगर ये स्लोप 0 हो गया और फिर बढ़ने लगा, ये स्लोप नेगेटिव हो गया स्लोप, ये स्लोप इज 0 और स्टार्ट्स नेगेटिव, देन वी कैन दिस सिस्टम इज स्टेबल। देखिए अगर ये ऐसे जा रहा है तो अनस्टेबल हो गया, और अगर ये कम होने लगा तो अगर फ्रैक्शन नहीं होता तो ये अनस्टेबल होता, लेकिन फ्रैक्शन है तो ये अल्टीमेटली तो it may take, if the fraction is high so it will take more time, if the fraction is low it will take more time, if the fraction is high it will take less time। लेकिन एक बार अगर डाउन हुआ तो ये डाउन होगा, मींस हम ये कह सकते हैं कि m की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो सिस्टम हमारा स्टेबल है। ये दिस कंक्लूजन वी वांट टू ड्रॉ फ्रॉम हियर। तो हमने यही लिखा है इफ डी डेल्टा बाई डी टी विच इज द स्लोप इज लेस देन इक्वल टू 0 तो सिस्टम स्टेबल है, अगर ये डी डेल्टा बाई डी टी हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो सिस्टम अनस्टेबल है। ये कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद में अगेन वी कम ऑन द स्विंग इक्वेशन। स्विंग इक्वेशन क्या था, एम डी स्क्वायर बाई डेल्टा टी स्क्वायर पी एम माइनस पी। ये देखिए 2 डेल्टा बाई डी टी तो ऐसे दोनों तरफ लिखा है, दोनों तरफ हमने इसका मल्टीप्लाई किया है, अदरवाइज दिस इक्वेशन इज एम डी स्क्वायर बाई डेल्टा टी स्क्वायर पी एम माइनस पी ए, ये है पी एम माइनस पी, पी एम मैकेनिकल पावर, पी इलेक्ट्रिकल पावर, इन दोनों का डिफरेंस को ही हम एक्सीलरेटिंग पावर कहते हैं, इसलिए इसको सीधा पी ए लिख दिया। जब ये 0 हो जाएगा देन हियर इट विल बी 0, तो दिस इज रिटन एज हियर एज ए पी ए एक्सीलरेटिंग पावर, ओके। नाउ यू सी इफ यू इंटीग्रेट दिस और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 है डी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर है, इंटीग्रेट ये पी ए है, डी डेल्टा डी टी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो गया, ये यही तो है ना, इसका डिफरेंशिएशन है पी ए
इसका मीन्स टी डेल्टा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा 0 टू डेल्टा पी ए डेल्टा। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट इट इज ए डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ रहा है 2 डी डेल्टा बाई डी टी देन दिस। इसको ये m को यहाँ एज्यूम करें तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 डी डेल्टा डी टी, फिर इसका करेंगे ये। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? सक्षम? सक्षम? कार्तिकेय? यस सर। हाँ, ये पॉइंट क्लियर है आपको? हाँ जी सर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करें तो ये आएगा। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया, इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। अब ये इसको फिर ये डी डेल्टा बाई डी टी का होल स्क्वायर है, तो इसलिए होल स्क्वायर को हटाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन इधर आ जाएगा, डी डी टी इसका इंटीग्रेशन इधर आ जाएगा। ओके, नाउ तो अभी कंक्लूजन क्या निकाला था? अगर डी डेल्टा बाई डी टी मतलब स्लोप इज लेस देन 0 तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब अगर ये पी ए डेल्टा इज लेस देन 0, क्योंकि 0 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो पी ए डेल्टा इज लेस देन 0 देन सिस्टम इज 0। एंड व्हाट इज पी ए डेल्टा? पी ए इज द एक्सीलरेटिंग पावर इंटीग्रेटिंग विद डेल्टा। कहाँ से लेके? स्टार्टिंग में जो डेल्टा था और जहाँ पे जाके वो स्टेबल होगा वहां तक अगर इंटीग्रेट कर दें और वो वैल्यू अगर 0 होती है तो सिस्टम स्टेबल होगा। मतलब इसको फिर फर्दर अगर हम समझें लाइक दिस फ्रॉम दिस फिगर, ये देखो पीएम है, ये डेल्टा 0 स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल पावर इतनी ले रही है। डेल्टा 0 मतलब ई बी बाई एक्स और पी में एक्स साइन डेल्टा 0, ये पी में। और यहाँ पे जब था पी में एक्स साइन डेल्टा 0 उस समय इलेक्ट्रिकल पावर ए और मैकेनिकल पावर ये दोनों बराबर थी। मतलब डेल्टा 0 में इतनी इलेक्ट्रिकल पावर थी, इतनी मैकेनिकल पावर थी, लेकिन हमने मैकेनिकल पावर बढ़ा दी। तो अब पीएम माइनस पीई एक्सेलरेशन है, पीए है एक्सेलरेटिंग पावर है। इस एक्सेलरेटिंग पावर से एक्सेलरेशन हो रहा है, डेल्टा बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, डेल्टा बढ़ रहा है। तो डेल्टा बढ़ेगा जब तो ये डेल्टा ऐसे बढ़ता जा रहा है, डेल्टा 0 प्लस समथिंग प्लस डेल्टा बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा तो ये पावर आउटपुट बढ़ती जाएगी। तो पावर आउटपुट तो एक्सीलरेटिंग पावर कम होती जाएगी, ये पावर कम होती जाएगी। यहाँ पे एक्सीलरेटिंग पावर इन दोनों का डिफरेंस था पीएम माइनस पीई, पी कर पे, तो ये कम होता जाएगा। यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से फिर भी पावर बराबर होते ही पीएम और पीई मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर बराबर होते हुए भी वो रुकेगा नहीं, क्योंकि इनर्शिया एक डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। ऐसे जब इनर्शिया आगे बढ़ता चला गया तो ये देखिए ये पी नाउ पी मोर, पीएम तो उतना ही है मैकेनिकल पावर, और इनर्शिया की वजह से आगे निकल गया। तो आगे निकल गया मतलब क्या है? डेल्टा ज्यादा हो गया और आउटपुट पावर ज्यादा हो गई। तो आउटपुट इज मोर देन द इनपुट। ये आउटपुट इज दिस, इनपुट इज दिस। तो दिस आउटपुट माइनस इनपुट, इसकी वजह से डी एक्सेलरेशन होगा। और यू कैन से यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। तो पी ए डेल्टा कर्व है, जो पी ए ये है, डेल्टा ये है। तो पी ए डेल्टा कर्व मतलब यहाँ देखेंगे पी और डेल्टा मतलब एरिया ऑफ दिस, इसको इंटीग्रेट करेंगे पी ए डेल्टा, तो ये इंटीग्रेशन आ गया। So P A delta is nothing but the integration. It is a positive integration, it is negative. So we can say algebraic integration of P A delta curve if it is 0. ये जो अभी निकाला है P A delta if it is 0 or less than 0 तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो और इसको हम दोबारा कहें इसी बात को, ये भी algebraic sum of the accelerating and algebraic sum of the net area P A delta curve. If it is 0, then system will be stable. Otherwise, we can say the algebraic sum of both the area should be 0. Or we can say accelerating area if it is equal to this or less than this A2, deaccelerating area. Deaccelerating area से अगर ये कम है, इसमें acceleration हो रहा था, इसमें deacceleration हो रहा था। तो if the accelerating area is equal to or less than deaccelerating area, then system will be stable. यही हमने उस इक्वेशन से प्रूव किया है। तो इसमें और ये मैक्सिमम ये जैसे ही बराबर होगा, यस
जैसे ये बराबर होगा ये आगे बढ़ता चलाएगा, ये बढ़ते बढ़ते हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये पूरा एक्सेलरेटिंग एरिया ये जो है इस एरिया से, या अगर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया तो इससे कम हो, ये एक्सेलरेटिंग एरिया इस व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ये यहाँ पे था तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ सकता है, इसको देखिए यहाँ तक आ सकता है डेल्टा टू, तो ये एरिया इससे कम होना चाहिए। अगर हमने मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैकेनिकल पावर इसकी बजाय इतनी बढ़ाई होती तो ये एरिया ज़्यादा होता, ये कम हो, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये एरिया बढ़ेगा, सपोज हमने मैकेनिकल पावर PM1 की जगह यहाँ कर दी, ये यहाँ तक कर दी इसके टिप तक, तो ये देखिए यहाँ से लेके ये टिप और ये तो ये एरिया ज़्यादा हो गया और फिर ये कम बचेगा, ये यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो ये थोड़ा सा बचेगा। मीन्स अगर हम इसको फिर देखें, ये देखिए ये एरिया ज़्यादा हो गया, हमने ये वैल्यू बढ़ा दी PM1 तो ये थोड़ा कम हो गया, ये तो ये एरिया इससे ये डीएक्सेलरेटिंग एरिया, ये एक्सेलरेटिंग एरिया है। अगर ये ज़्यादा होगा इससे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ये वाला ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये इससे कम होना चाहिए। और ये डीएक्सेलरेटिंग एरिया कितना, मैक्सिमम इतना हो सकता है कि मैक्सिमम इतना कितना डेल्टा टू कहाँ से निकल कर आएगा, अगर ये पॉइंट डेल्टा 1 था तो ये टोटल पाई होता है, पाई माइनस डेल्टा 1 के बराबर अगर इसकी वैल्यू है तो हम कह सकते हैं, और जो ये तो इसकी वैल्यू है और ये एरिया जो है हमारा इससे कम होना चाहिए। तो इसको अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या, ऐसा करते हैं, ये एरिया कैसे निकालेंगे, हाउ विल फाइंड दिस एरिया, इसको निकालने के लिए PM1 जितनी हमने एडिशनल पावर उड़ाई तो फिक्स रहेगा PM1 माइनस PE की वैल्यू चेंज होगी, PE की वैल्यू कितनी होगी, P मैक्स साइन डेल्टा और डेल्टा चेंज होता जाएगा, P मैक्स साइन डेल्टा। और ये मान लिया हमने सिस्टम स्टेबल हो रहा है डेल्टा 1 पे, तो हमें निकालना पड़ेगा अगर सडनली लोड कितना बढ़ा दें तो ये डेल्टा 1 पे स्टेबल हो जाएगा, और ये डेल्टा 2 कितना होगा, इट विल बी पाई माइनस डेल्टा 2 विल बी डेल्टा, और यू कैन से डेल्टा मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 विल बी द डेल्टा मैक्स, इट इज पाई माइनस डेल्टा 1, ये डेल्टा 1 है तो ये टोटल पाई था, पाई माइनस डेल्टा 1 हो गया, पाई माइनस डेल्टा 1, और डेल्टा 1 ये कितना, डेल्टा 1 हमने क्या कहा, ये PM1 है ना, न्यू वैल्यू इंक्रीज, न्यू PM1 इज द P मैक्स साइन डेल्टा 1, P मैक्स साइन डेल्टा 1, वहां से डेल्टा 1 निकाल के लिख दिया। तो नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए हम इस पे फर्दर एक केस कंसीडर करते हैं। एक केस कंसीडर किया कि भाई देयर इज ए 3-फेज फॉल्ट एट द टर्मिनल ऑफ द जनरेटर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब जनरेटर पे हमने एक केस ले लिया, जनरेटर के स्टेटर पे जनरेटर के टर्मिनल पे 3-फेज फॉल्ट हो गया, 3-फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया। 3-फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का मतलब क्या है, आउटपुट पावर 0 हो गई, इनपुट पावर आ रही है, आउटपुट पावर 0 हो गई। तो जैसे अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखा था, इनपुट और आउटपुट पावर में अगर डिफरेंस है तो फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है, और ऊपर देखा था 1 मिनट के अंदर ही हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ, वो तो रफ आइडिया था, रफ कैलकुलेशन थी, इसमें एग्जैक्ट निकालेंगे कि अगर हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया तो 3-फेज फॉल्ट हो गया, 3-फेज शॉर्ट सर्किट हो गया जनरेटर की टर्मिनल पे, तो कितने टाइम में हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हुआ, कितने टाइम से पहले हमें सिस्टम से फॉल्ट क्लियर कर देना चाहिए जिससे कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल ना हो। तो ये एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे देखिए, दिस इज द एग्जांपल, हियर यू सी PM1, initially it is working at PM1 input and PM1 is the input, मैकेनिकल पावर इनपुट। उस समय जब PM1 है उस समय ये एंगल है डेल्टा 0, PM1 के बराबर इलेक्ट्रिकल पावर होगी, इलेक्ट्रिकल पावर कितनी है, EV/x साइन डेल्टा 0, EV/x साइन डेल्टा 0 इक्वल टू PM, तो ये डेल्टा 0 हमारा आ गया पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। अब यहीं पे फॉल्ट हो गया, जनरेटर के टर्मिनल पे फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट यहाँ, तो फॉल्ट हो गया मतलब आउटपुट 0 हो गया, इनपुट इतना ही है, इनपुट तो इतना ही बना हुआ है PM1, और आउटपुट 0 हो गया, तो ये इनपुट क्या करेगा, पूरा का पूरा इनपुट एक्सेलरेट करेगा, और डेल्टा हमारा डेल्टा 0 से डेल्टा ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये कर्व, ये हमारा जो कर्व था वो यहाँ 0 पे यहाँ पे आ गया, क्योंकि आउटपुट इज 0,
तो ये डेल्टा ऐसे बढ़ता चला जाएगा, पी ए माइनस डेल्टा, इतनी एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे सपोज करिए वी आर एबल टू क्लियर द फॉल्ट, यहाँ पे जो फॉल्ट था हमने ओपन कर दिया, मीन्स क्लियर कर दिया, फॉल्ट हट गया, फॉल्ट हट गया तो क्या होगा, उस समय डेल्टा हमारा डेल्टा सी हो चुका है। डेल्टा डेल्टा मतलब पावर एंगल, रोटर और रोटेटिंग फ्लक्स के बीच का एंगल जो 30 डिग्री यहाँ था वो बढ़ के सपोज करिए डेल्टा सी हो चुका है। तो ये एंगल बढ़ चुका है, जब डेल्टा सी हो चुका है, जब एंगल ज्यादा है तो इमीडिएटली जैसे ही फॉल्ट क्लियर होगा ये आउटपुट पावर इतना लेगा, आउटपुट ज्यादा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आउटपुट पावर मीन्स ये कैसा आएगा, EV बाई एक्स और पी मैक्स साइन डेल्टा सी के बराबर आउटपुट पावर हो जाएगा। अब ये पावर इस मैकेनिकल पावर से ज्यादा है, आउटपुट इज मोर देन मैकेनिकल इनपुट, तो ये डीएक्सेलरेशन करेगा। डेल्टा तो बढ़ ही रहा है क्योंकि इनर्शिया की वजह से बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ डीएक्सेलरेशन होगा। फाइनली एट दिस पॉइंट, दिस इज नॉट मैक्सिमम पॉइंट, दिस कैन बी हियर एनीथिंग लाइक दिस, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो दिस पॉइंट, तो ये जो एरिया अगर ये पॉसिबल, ये तो डेल्टा टू यहाँ पे अगर दोनों बराबर हो गए तो हमारा ये मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा और इसके अराउंड ऐसे ऑसिलेट करते करते यहाँ पे हमारा स्टेबल हो जाएगा। ये फॉल्ट क्लियर हुआ है, फॉल्ट क्लियर हुआ है तो ये डीएक्सेलरेटिंग है और ये इसी पे मैक्सिमम इनपुट पावर, तो ये पीएम था, आउटपुट फिर फॉल्ट क्लियर होने के बाद फिर यही हो गया, तो इनपुट भी यही हो गया, आउटपुट भी हो गया, यहीं पे फॉल्ट, यहीं पे पावर एंगल दोबारा आ जाएगा, मतलब इसके अराउंड वैसे ऑसिलेट करेगा और यहीं आ जाएगा। मैक्सिमम ऑसिलेशन कितना हो सकता है इस केस में, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इसमें देखिए मैक्सिमम यहाँ तक भी हो सकता है। तो इसमें अगर यहाँ पे हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ तो ऐसा ऑसिलेट करेगा एंगल डेल्टा, पावर एंगल, और फाइनली ये यहाँ स्टेबल हो रहा है। ये अब स्टेबिलिटी कैसे पता लगेगी कि ये जो है दिस एरिया शुड बी हायर देन दिस, ये निकालना है, तो यही देखना है इसमें। अब क्रिटिकल ये एंगल कैसे निकालना है, मतलब किस फॉल्ट पे, किस एंगल पे हमने फॉल्ट क्लियर कर देना है जिससे कि ये एरिया इससे, इसका मतलब इसको निकालना पड़ेगा, इसको ये एरिया निकालने का तो सिंपल तरीका, देखिए ये रेक्टेंगल है तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाइट इंटीग्रेशन कर, हाँ नहीं इसमें इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, इट इज सिंपली ए स्क्वायर और सॉरी रेक्टेंगल, तो ये पीएम माइनस दिस डेल्टा सीआर माइनस डेल्टा जीरो, ये एरिया निकालना ना, ये रेक्टेंगल है तो इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, यू नो हाइट इनटू विड्थ इज द एरिया, हाइट पीएम है और विड्थ डीसीआर माइनस डी जीरो है, तो पीएम माइनस डीसीआर माइनस डी जीरो इज द एरिया A1, ये इससे कम होना चाहिए, ये निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इस एरिया को निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, ये है डेल्टा सीआर से लेके डेल्टा मैक्स तक, तो इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे कैसे, A2, ये जो कर्व है इस कर्व का इक्वेशन है पी मैक्स साइन डेल्टा और ये माइनस पीएम, ये जो पीएम था जो इनपुट जा रहा था, पी मैक्स साइन डेल्टा माइनस पीएम, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से लेके यहाँ तक, डेल्टा सीआर से डेल्टा मैक्स तक, डेल्टा सीआर से डेल्टा मैक्स तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे पी मैक्स साइन डेल्टा इज माइनस पी मैक्स कॉस डेल्टा, और ये डेल्टा सीआर से डेल्टा मैक्स, पीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो पीएम इंटू डेल्टा, ठीक है, ये कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा की जगह डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा सीआर आ जाएगा, डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा सीआर आ जाएगा, यहाँ डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा सीआर आ जाएगा, ये माइनस है तो ये आप लिमिट चेंज कर सकते हैं, डेल्टा सीआर इधर, डेल्टा मैक्स इधर और पी मैक्स, तो पी मैक्स कॉस डेल्टा सीआर माइनस पी मैक्स कॉस डेल्टा मैक्स, ये देखिए ये आ गया, इसको ये अंदर ले जाओ, ये आ गया पीएम, ये पीएम ही है, पीएम डेल्टा मैक्स एंड पीएम डेल्टा सीआर, ये पीएम है, दिस इज पीएम, ओके। अब डेल्टा मैक्स है कितना, डेल्टा मैक्स दिस वैल्यू इज पाई माइनस दिस, और ये कितना होगा, यहाँ से अगर देखोगे ये कर्व, ये लाइन, जितना ये वैल्यू है उतना डेल्टा जीरो है, यू कैन से पाई माइनस डेल्टा जीरो, दिस डेल्टा मैक्स इज पाई माइनस डेल्टा जीरो, तो डेल्टा मैक्स ये लिखा पाई माइनस डेल्टा जीरो, यहाँ डेल्टा मैक्स ये था और डेल्टा मैक्स ये था, इसकी जगह पाई माइनस डेल्टा जीरो लिख दिया। जब ये पी मैक्स पाई माइनस डेल्टा जीरो यहाँ लिखेंगे
डेल्टा जीरो, तो ये पाई माइनस डेल्टा जीरो मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पी मैक्स कॉस डेल्टा जीरो है, यहाँ डेल्टा मैक्स ये पाई माइनस डेल्टा जीरो यहाँ ये लिख दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये एरिया, दिस एरिया और दिस एरिया दोनों को इक्वल कर दिया। जब ये दोनों को इक्वल किया, कुछ टर्म इसमें कैंसिल हो गई। कौन सी टर्म? पी एम डेल्टा सी आर, पी एम डेल्टा सी आर, ये कैंसिल हो गई। और ये फाइनली इक्वेशन ये आ गई, पी एम इंटू पाई, पी एम पाई माइनस था इधर प्लस हो गया, ये पी एम डेल्टा जीरो इधर भी है इधर भी है, तो ये दो बार आ गया और ये इक्वेशन आ गई। इसमें पी मैक्स ये हम लेकर चल रहे हैं, पी एम इज इक्वल टू पी मैक्स साइन डेल्टा जीरो। ये देखिए पी एम, ये पी एम ये ना, पी एम इज पी मैक्स साइन डेल्टा, ये डेल्टा जीरो, पी एम साइन डेल्टा जीरो, तो ये हमने यहाँ रख दिया। पी एम की जगह पी मैक्स साइन डेल्टा जीरो लिख दिया, पी एम लिख की जगह, तो एवरीवेयर इट इज पी मैक्स पी मैक्स पी मैक्स, ये आ गया। और ये पी मैक्स कैंसिल हो गया, ये डेल्टा जीरो है, ये डेल्टा सी आर है, ये कॉस डेल्टा सी आर इस साइड में चला जाएगा, तो ये फाइनली डेल्टा सी आर कॉस इनवर्स, डेल्टा सी आर निकलेगा ना, कॉस इनवर्स दिस इज पाई माइनस टू डेल्टा साइन डेल्टा जीरो, और ये कॉस डेल्टा जीरो, ये निकले। मतलब ये क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल है, दिस इज कॉल्ड एज ए क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। अगर हमने इस एंगल तक फॉल्ट क्लियर कर दिया तो हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा। अगर इस एंगल तक फॉल्ट क्लियर नहीं किया तो A2 कम हो जाएगा और A1 ज्यादा, A2 A1 के कंपैरिजन में कम हो जाएगा और सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? यहाँ तक कुछ पूछना है? हाँ सक्षम, कुछ पूछना है? सक्षम, जगबीर, तरुण, तन्नू, संतराम? यस सर। तो ये तीन चार लोग ये सो रहे हैं, इसका मतलब जो तीन चार हैं अभी तक नहीं बोल रहे हैं, वो सो रहे थे ना क्लास में। चलो एनीवे, तो फिर नहीं तो फिर मैं आपका वीडियो ऑन कराने लगूंगा। अगर आप ऐसे सोएंगे ना क्लास में तो वीडियो ऑन कराना शुरू कर दूंगा। तो दिस इज द व्हाट इज दिस डेल्टा सी आर, बताना संतराम। क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल सर। हाँ, ये वो एंगल है कि हमारा फॉल्ट इस तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फॉल्ट क्लियर हो गया तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, नहीं तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ओके, नाउ अब ये कैसे पता लगेगा क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल कब आया? देखिए हमने यहाँ इसमें देख लिया, अगर यहाँ तक फॉल्ट क्लियर हो गया DCR क्रिटिकल क्लियर एंगल, तो सिस्टम स्टेबल होगा, मतलब A2 की वैल्यू A1 से ज्यादा है। लेकिन एंगल कैसे मेजर करेंगे? फॉल्ट आया, एंगल कहाँ पे है? एंगल इज दिस एंगल इज एंगल बिटवीन रोटर एंड रोटेटिंग फ्लक्स, जो रोटर और स्टेटर के बीच का एंगल। रोटर अंदर है स्टेटर के और रोटेटिंग फ्लक्स भी नहीं दिख रहा है, और उसके और रोटर के बीच का एंगल ये निकालेंगे कैसे? मीन्स वी कैन नॉट फाइंड कि अब डेल्टा है तो अब फॉल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। सो वी हैव टू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम टाइम को तो समझ सकते हैं कि इतने मिली सेकेंड में अगर फॉल्ट क्लियर हो गया, फॉल्ट आने के बाद तो सिस्टम स्टेबल होगा। इसका मतलब इतने मिली सेकेंड से पहले हमें फॉल्ट क्लियर कर देना चाहिए। और टाइम पता, मतलब अगर हमें डेल्टा CR के अकॉर्डिंगली क्रिटिकल टाइम पता लग जाए, मीन्स TCR, तो हम ठीक है सर्किट ब्रेकर और रिले ऐसे सेट कर सकते हैं कि उससे पहले हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो इट इज नीडेड टू अंडरस्टैंड, टू नो व्हाट इज द TCR. Delta CR is okay, it gives good study, but until unless we know time, critical clearing time, it is not of any practical use. तो वो नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन थी हमारी m स्क्वायर डेल्टा टी m माइनस पीई, m माइनस पीई था ना, m माइनस पीई एंड पीई। इस केस में देखिए जब फॉल्ट हो रहा है यहाँ, उस समय पीई 0 है, तो उस समय हमने उसी समय पीई 0 यहाँ तक है, थ्रू आउट दिस पीई 0। तो इक्वेशन हमारी क्या है? Pm इज इक्वल टू md स्क्वायर बाई डेल्टा टी स्क्वायर, md स्क्वायर डेल्टा बाई टी स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक वही इक्वेशन है Pm, क्योंकि पीई है ही नहीं।
तो इसी इक्वेशन में PM इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर बाई डेल्टा टी स्क्वायर, इक्वेशन में ही हमें डेल्टा सी आर उसी के एंड पे है, यही डेल्टा सी आर निकालना है उस इक्वेशन में। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, एम डी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू PM, यहाँ तक ये दूसरी इक्वेशन, ये साथ में यहाँ नहीं लिखना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। दिस इज, यहाँ से लेके यहाँ तक एक इक्वेशन आ गई। तो ये m को PM से डिवाइड कर दें तो ये आएगा डी स्क्वायर डेल्टा डी टी स्क्वायर इक्वल टू PM बाई m। इसको हम डबल इंटीग्रेट करें, इसको डबल इंटीग्रेट करेंगे, डी स्क्वायर बाई डेल्टा टी स्क्वायर को डबल इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा आ जाएगा, इसको डबल इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? इसको डबल इंटीग्रेट करेंगे टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और सम कांस्टेंट विल बी देयर। तो इसको डबल इंटीग्रेट करने पे ये वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल कम। उस समय जब, अब इस इक्वेशन में जब डेल्टा डेल्टा सी आर है उस समय टाइम टी सी आर होगा, इसमें डेल्टा की जगह डेल्टा सी आर लिख दे, टाइम की जगह टी सी आर लिख दें। ओके, तो यू कैन से 2m डेल्टा सी आर माइनस डेल्टा जीरो, ये ना डेल्टा सी आर माइनस डेल्टा जीरो मल्टीप्लाई बाई 2m डिवाइड बाई PM, और ये टी सी आर आ गया, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आ गया टी सी आर, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम मीन्स इतने समय तक। डेल्टा सी आर की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। डेल्टा जीरो हमें स्टार्टिंग में पता है कि कितना पावर ले रहा है, उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा जीरो क्या है, वी नो दिस, वो कितनी पावर ले रहा है ये भी पता है। इसका मतलब ये TCR निकाल लेंगे, मतलब इतने समय तक हमने फॉल्ट क्लियर कर देना, जैसे ही फॉल्ट आया इतने समय तक फॉल्ट क्लियर कर देना चाहिए। अगर इतने समय तक फॉल्ट क्लियर नहीं किया तो क्या होगा, वो फॉल्ट जो है एक्स्ट्रा एनर्जी लेता चला जाएगा, जो रोटर में स्टोर थी उससे लेता चला जाएगा, और ये हमारा सिंक्रोनिज्म लूज हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अप टू, जस्ट अ मिनट, हाँ, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन अप टू नाउ यू कैन आस्क।